Hello students, welcome to Pandey Economics classes. This is video number 57 and in this video we are going to discuss the calculation of standard deviation and coefficient of standard deviation in continuous series. पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हाउ टू कैलकुलेट standard deviation and coefficient of standard deviation in individual series and discrete series. Children, we have already discussed that there are four methods of calculating standard deviation in all type of series like individual series, discrete series and continuous series, and that four methods are actual mean method, direct method, shortcut method and assume mean method. So these are the four method of calculating arithmetic mean. In short we can call it mean. जो अर्थमेटिक मीन हमें कैलकुलेट करना है चिल्ड्रन, वो हम फोर मेथड्स कैलकुलेट कर सकते हैं: एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन मेथड. these four are the method of calculating step deviation. Here in this video we are going to discuss about standard deviation and coefficient of standard deviation in continuous series. So in the similar way children, for calculating standard deviation for continuous series also we have four methods. So in this video we are going to first two method of calculating standard deviation in continuous series, and these method are actual mean method and direct method. So first of all we will discuss actual mean method and after that we will discuss direct method. I have one table children, and in this table you can see there are class intervals and frequency. Using these class interval and frequency we will apply both these formula for calculating actual mean in the continuous series we will calculate standard deviation and coefficient of standard deviation by using both the methods. So let's get started without wasting the time. But children, in this type of question square root play very important role. Overall if you will not know how to calculate square root, you will face a problem. During this chapter many of the time I discussed you regarding the square root, but children in this video it is not possible to discussing the square root also, but I promised you that in the next video or after the end of this chapter definitely I will tell you how to calculate square root in decimal numbers, right? So पहले हम इस चैप्टर को चिल्ड्रन कैलकुलेट, इस वीडियो में जो हमारा थीम है पहले हम लोग उसको कवर कर लेते हैं. तो चिल्ड्रन देख सकते हो कि हमारे पास ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन में क्लास इंटरवल है 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12 एंड 12 to 16. हमारे पास फ्रिक्वेंसीज हैं 4, 8, 2 एंड 1. जब भी चिल्ड्रन हमें अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना हो कंटिन्यूस सीरीज में तो क्लास इंटरवल का चिल्ड्रन मिड वैल्यू हमें कैलकुलेट करना जरूरी होता है. अगर आप इस फार्मूले को ध्यान से देखेंगे चिल्ड्रन तो आपको मिलेगा एक्स बार. ये एक्स बार रिप्रेजेंट करता है अर्थमेटिक मीन को. इसका मतलब ये है कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अर्थमेटिक मीन की भी ज़रूरत है. जो मिड वैल्यू है चिल्ड्रन वो क्लास इंटरवल का हाफ होता है. क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट होता है. लोअर लिमिट अपर लिमिट को आप ऐड कर दोगे और उनको 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा मिड वैल्यू. मिड वैल्यू को स्मॉल m के लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. L1 रिप्रेजेंट करता है लोअर लिमिट को, L2 रिप्रेजेंट करता है अपर लिमिट को और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं. अगर मैं यहाँ पर एक क्लास लेता हूँ, मैंने क्लास ले लिया 12 to 16, सॉरी ये 16 है, तो इसमें ये तो 12 तो चिल्ड्रन लोअर लिमिट हो गया, 16 हो गया चिल्ड्रन हमारा अपर लिमिट. ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 12 + 16 अपॉन 2 दैट इज़ 28. 28 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 14. तो जो हमारी क्लास है 12 to 16, इसकी जो मिड वैल्यू है वो है 14 और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल लेटर के m से. ठीक चिल्ड्रन, तो चलिए क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक्चुअल मीन मेथड को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो चिल्ड्रन फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल नोट डाउन द क्लास इंटरवल. CI से रिप्रेजेंट करना है क्लास इंटरवल को और यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी लिखूँगा और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चिल्ड्रन मिड वैल्यू. ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे FM. ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मिड वैल्यू. तो मिड वैल्यू चिल्ड्रन हमारे पास है 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12 एंड 12 to 16. अब चिल्ड्रन हम फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं. पहले 4 हो गया,
4 है, 8, 2 एंड 1। उसके बाद चिल्ड्रन हम लोग नोट कर लेते हैं अपने जो मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू 0 to 4, 0 और 4 को ऐड करेंगे 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2। ये देखिए 4 और 8 12 है, 12 को हाफ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6, 8 और 12 को ऐड करेंगे 20, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10, ये 28 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14। क्लियर है चिल्ड्रन? अब हम फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, 10 2 जा 20, 14 1 जा 14। और चिल्ड्रन हम फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालेंगे एंड द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मिड वैल्यू का टोटल भी फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 4 8 12 एंड 12 to 14 115। तो फ्रीक्वेंसी का चिल्ड्रन जो टोटल है वो तो हमारे पास आ रहा है 15, और जो हमारे पास प्रोडक्ट है एफएम का फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू का उसका हम देख लेते हैं। 8 8 16 4 20 0 कैरी 9 2 4 6 6 2 8 8 1 9। तो ये चिल्ड्रन हमारे पास आ गया 90। ये है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोडक्ट एंड मिड वैल्यू। ठीक है, इन दोनों को चिल्ड्रन हम लोग यूज करके और कैलकुलेट करते हैं हमारा जो अर्थमेटिक मीन है, जिसको हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो फार्मूला है चिल्ड्रन वो है सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। तो ये हमारे पास 90 है, इसको हम 15 से डिवाइड कर लेंगे चिल्ड्रन तो 15 6 जा 90 आ गया। ये चिल्ड्रन हमारे पास आ गया है जो अर्थमेटिक मीन। और अब हम चिल्ड्रन इसमें कैलकुलेट करेंगे जो भी अब डेविएशन हम चिल्ड्रन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखिए डेविएशन के लिए हमने यहाँ पर फार्मूला लिख रखा है, मिड वैल्यू से आप अर्थमेटिक मीन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये डेविएशन है चिल्ड्रन, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मिड वैल्यू माइनस एक्स बार जो है इसका डेविएशन जो है मिड वैल्यू और एक्स बार के डिफरेंस के इक्वल होगा। एक्स बार जो है वो हमारा अर्थमेटिक मीन है। तो देखिए अर्थमेटिक मीन हमारा 6 है, मिड वैल्यू को यहाँ पर हम लोग एक बार लिख लेते हैं, 2 है, 6 है, 10 है और 14 है। इसमें से हमें अर्थमेटिक मीन को सब्ट्रैक्ट करना है। अर्थमेटिक मीन हमारा है 6 6 6 और 6। सब्ट्रैक्ट करते हैं चिल्ड्रन, पहले आ गया -4, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 4 और फिर आ जाएगा हमारे पास 8। तो ये चिल्ड्रन हमारे पास आ गया डेविएशन, राइट। और अब हम चिल्ड्रन इस डेविएशन का स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि चिल्ड्रन देखिए हमें एफ डी स्क्वायर चाहिए। तो पहले हम डेविएशन का स्क्वायर कर लेंगे। तो डेविएशन का स्क्वायर कर लेते हैं, 4 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 16, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर चिल्ड्रन हो जाएगा 64। और अब हमें चिल्ड्रन चाहिए एफ डी स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई डेविएशन के स्क्वायर से कर देंगे चिल्ड्रन। तो देखिए हमारी फ्रीक्वेंसी है 4 और डेविएशन का स्क्वायर 16, तो 16 4 जा 64, 0 का मल्टीप्लाई आप करेंगे 8 में तो ये 0 हो जाएगा, 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो आपके पास आ जाएगा 32, 16 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे आपके पास आ जाएगा 64, 16 नहीं 64 का मल्टीप्लाई चिल्ड्रन। तो यहाँ पर हमारे पास चिल्ड्रन आ जाएगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर। इसको हम ऐड कर लेते हैं, 4 4 8 8 2 10 0 कैरी एंड 1 7 3 10 10 एंड 6 16। तो ये चिल्ड्रन हमारे पास आ गया 160। ठीक है, अब हम इन वैल्यूज़ को अपने फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करके और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का चिल्ड्रन हमारे पास जो फार्मूला है ये देख सकते हैं, सिग्मा होना चाहिए। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमें चाहिए। सिग्मा एफ डी स्क्वायर हमारे पास चिल्ड्रन है 160 और सम ऑफ सिग्मा एफ हमारे पास पहले से पता है वो है हमारे पास 15। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारे पास 160 चिल्ड्रन 160। आप इसको 15 से डिवाइड कर लीजिए तो ये हमारे पास आ गया है 0, डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर आपको 0 लिखना पड़ेगा और पॉइंट लगाएंगे 0, 15 6 जा 90। ठीक है, तो ये फिर से वही आता रहेगा, ये देखिए। तो इसको चिल्ड्रन हम लोग लिखते हैं 10.6 और 7। हमें 2 पॉइंट तक करेक्ट आंसर चाहिए था। अब चिल्ड्रन देखो ये 10.67 जो है स्क्वायर रूट
जो स्क्वायर में है। अब हमें इसका स्क्वायर रूट चाहिए, तो स्क्वायर रूट करने के लिए चिल्ड्रन हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10.67, ठीक है, और इसके आगे हम ये पेयर बना लेते हैं। हम यहाँ से मेथड की डिस्कस नहीं कर रहे चिल्ड्रन आपसे। हमारे पास 10 है चिल्ड्रन, आप एक ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो है हमारे पास 3 3 या 9, ये 2 जगह लिखा, एक बार और यहाँ पे लिखेंगे 9 आ गया, ये 6, इन दोनों को ऐड करके 6 यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 आएगा यहाँ पे पॉइंट, और ये नेक्स्ट जो पेयर है इसको आप नीचे ले आइए। 6 का मल्टीप्लाई इसमें आप डिवाइड करेंगे, 6 2 जा, तो यहाँ पर 2 टाइम आप डिवाइड कर सकते हो, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ये आ गया आपके पास 3, ये आपके पास आ गया 4, इनको ऐड कर देंगे, 1 पेयर और ले आते हैं ये 0 वाला, और ये 6 का 7 टाइम देख लेते हैं, तो 6 4 और 7 टाइम डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 7 से 49, कैरी 9 4, 7 4 से 28 एंड 4 32 के लिए 2 आएगा, कैरी 9 3, 7 6 जा 42 एंड 3 47। तो चलिए ये 6 टाइम, तो इसको हम 7 टाइम डिवाइड नहीं कर सकते, 6 टाइम करके देख लेते हैं। तो 6 6 36, कैरी 9 3, 6 4 जा 24 एंड 3 27, कैरी 9 2, 6 6 36 एंड 2 38। ये सब्ट्रैक्ट कर लीजिए चिल्ड्रन, तो ये आ गया 4, 9 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, और 12 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आ जाएगा 4, और ये, तो चिल्ड्रन हमारे पास स्क्वायर रूट लगभग आ गया है 3.26, और एक बार हम इसको देख लेते हैं, तो हमारा जो आंसर है चिल्ड्रन वो लगभग करेक्ट है, 3.26 स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया है, जो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 3.26। अब हमें चिल्ड्रन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है चिल्ड्रन उसको आप अर्थमेटिक मीन से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो ये हमारे पास था 3.26, और इसको अर्थमेटिक मीन है चिल्ड्रन हमारे पास 6, ये आप देख सकते हैं। तो 3.26 को आप 6 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए 3 तो डिवाइड होगा नहीं, उसके लिए 2 चाहिए, 2 से पहले डेसिमल, इसलिए यहाँ पर आप डेसिमल लिखिए और 5 टाइम डिवाइड करते हैं, 6 5 30, ये 2 आ गया, और ये 6 को ले आइए, 6 4 है 24, ठीक है, तो ये 2 हो गया, 0 6 3 18, ठीक है, अब यही आता रहेगा। तो चिल्ड्रन हमारा जो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 0.54, 0.54। तो चिल्ड्रन ये था हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग द एक्चुअल मीन मेथड इन कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। हमने क्या किया, फार्मूला हमारे सामने था, फार्मूला को आप याद कर लीजिए, और फार्मूले में जो चीज़ आपसे पूछी गई है वो टेबल बनाकर कैलकुलेट कर लीजिए, और कैलकुलेट करने के बाद वो सारे वैल्यू फार्मूले में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और जो भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, यानी कि एडिशन है तो ऐड करिए, स्क्वायर करिए, मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, स्क्वायर रूट करिए, ठीक है, जो भी करना है उसके अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन आपके पास आंसर आ जाएगा। अब चिल्ड्रन हम लोग नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट मेथड को यूज़ करते हैं। चिल्ड्रन जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था कि मेथड चाहे कोई भी हो, आंसर हमारा सेम आना चाहिए, सेम ही आता है। तो चिल्ड्रन जब हम डायरेक्ट मेथड इसमें यूज करेंगे, तो देखिए क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज है तो हमें क्लास इंटरवल की ज़रूरत पड़ेगी, हमें फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, हमें मिड वैल्यू की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है, और हमें एफएम की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास चिल्ड्रन पहले से कैलकुलेट हैं, जो इसमें नहीं है हम वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें चिल्ड्रन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो हमारा मिड वैल्यू है उसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, ये जो मिड वैल्यू है इसका हमें स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये तो 2 का स्क्वायर आप करेंगे तो 4 हो जाएगा, 6 का करेंगे तो 36, 10 का करेंगे तो 100, और 14 का करेंगे हम करके देख लेते क्योंकि मुझे याद नहीं है। 4 4 जा 16, 6 कैरी हैंड 1, 4 1 जा 4 1 5, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, तो ये आ गया चलो 196। तो ये चिल्ड्रन हमारे पास आ गया है स्क्वायर ऑफ मिड वैल्यू। और अब चिल्ड्रन देखिए आप
इसमें आपको कैलकुलेट करना है एफ और एम का स्क्वायर, यानी जो फ्रीक्वेंसी है उसका मल्टीप्लाई आप एम स्क्वायर में करेंगे। तो आप लिख सकते हो एफ इंटू एम स्क्वायर। तो एफ है, एम है 4 आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेगी 16, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 36 में, तो 8 6 जा 48 कैरिंग एंड 4, 8 3 24 एंड 4 28, 100 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 200, 196 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 196। यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सिग्मा एफ एंड एम स्क्वायर। तो 6 6 12, 12 8 20, 0 कैरिंग हैंड 2 और 2 9 11, 11 8 19, 19 1 20, 0 कैरिंग हैंड 2, 4 6 8, 2 4 6 8। ये 800 चिल्ड्रन हमारे पास आ गया। मैं एक बार देख लेता हूँ। 800 तो रॉन्ग है, 800 नहीं आना चाहिए, 700 आना चाहिए। एक बार और चेक कर लेते हैं। तो 6 6 12 8 20, 0 कैरिंग हैंड 2 3 8 11, 11 19 20, 0 कैरिंग हैंड 2 2 4 4 2 6 1 7। यस चिल्ड्रन 700 है ये। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सिग्मा एफ एम स्क्वायर भी है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला और सिग्मा एफ भी है, ये देख सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास अर्थमेटिक मीन भी है। हमें केवल वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले सिग्मा एफ एम स्क्वायर यानी कि हमारे पास 700 है, उसके बाद सिग्मा एफ यानी कि 15 और माइनस हम इसमें से कर देंगे स्क्वायर ऑफ अर्थमेटिक मीन। ठीक है, सबसे पहले आप 700 को डिवाइड कर लीजिए 15 से, तो 15 4 जा 60, ठीक है, 0 और ये 1 और 15 6 जा 90, ये 0 ये 1.0 15 6 जा 90, ठीक है, 0 1 15 6 जा 90। तो चलिए ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 46.67, इसको लिख लेते हैं 46.67 माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे चिल्ड्रन तो आपके पास आ जाएगा 36। ठीक है, अब हमारे पास है चिल्ड्रन 46.67 और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 36। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये 7 है, ये 6 है, ये 0 है और ये 1 है। तो हमारे पास आ गया चिल्ड्रन 10.67। और अब हमें चिल्ड्रन 10.67 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के बाद चिल्ड्रन हमारा आंसर वही आना चाहिए जो पिछली बार आया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा 10.67, ये 2 पेयर तो हमारे पास ये बन ही गए हैं, 2 पेयर और बना लेते हैं और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फिर से देखिए हमारे पास 10 आ गया है। आप एक ऐसा नंबर सोचिए, अज्यूम करिए जिसका स्क्वायर 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नंबर चिल्ड्रन हमारे पास 3 है, 3 को यहाँ लिखिए एक बार यहाँ लिखिए और एक बार यहाँ लिखिए। 3 में 3 का मल्टीप्लाई करें, जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे, 3 और 3 ऐड करके यहाँ लिख देंगे। 10 से 9 को सब्ट्रैक्ट करिए, 6 से इसको डिवाइड करना, डिवाइड नहीं जाएगा तो पहले आप डेसिमल लगाओ और नेक्स्ट जो पेयर है वो नीचे लाते हैं और 6 से इसको डिवाइड करना है। तो जितनी बार चिल्ड्रन 6 का इसमें डिवाइड जाएगा उतना नंबर इसके बगल में लिख के हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो 6 का मल्टीप्लाई 16 में 3 टाइम तो 18 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 2 टाइम करके देख लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, 6 का इसमें जितनी बार टेबल जाएगा उसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसके साइड में लिखकर। तो 2 टाइम तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, देखिए 124 आ रहा है, तो यानी कि हम 2 टाइम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, एक बार यहाँ लिखेंगे और एक बार यहाँ लिखेंगे। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 7 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 4 से 6 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, ये हमारे पास 64 आ गया है, ये 43 है जी। नेक्स्ट पेयर हम नीचे ले आते हैं। 6 से इसको डिवाइड करिए चिल्ड्रन, तो 6 का टेबल इसमें 7 टाइम, तो 6 4 और 7 टाइम में जा रहा है तो 7 यहाँ लिखेंगे और 7 कैसे मल्टीप्लाई कर लो। 7 से जो 49 कैरी एंड 4, 7 4 जो 28 एंड 4 32 कैरी एंड 3, 7 6 जो 42 एंड 3 45। तो देखिए ये ज़्यादा हो रहा है 7 टाइम, तो हम इसको 6 टाइम करके देख लेते हैं। 6 6 36 कैरी एंड 3, 6 4 जो 24 एंड 3 27 कैरी एंड 2, 6 6 36 एंड 2 38। तो चिल्ड्रन 3.26 हमारा आंसर आ गया है और इसको हम इतना ही लिख लेते हैं फिलहाल। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। और चिल्ड्रन आपको याद होगा तो पिछली बार भी हमारा आंसर इतना ही आया था। और अब आपको चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को
अर्थमेटिक मीन से डिवाइड कर लेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ये है और हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन हमारे पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन है 3.26 और अर्थमेटिक मीन था चिल्ड्रन हमारे पास 6। ठीक है, तो 3.26 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 5 जो पहले पॉइंट आएगा और 6 5 जो 32 और ये 6 6 4 जो 24। ठीक है, तो ये 2 और बार बार फिर वही आता जाएगा। तो चिल्ड्रन हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं 0.54 ये हमारा था चिल्ड्रन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चिल्ड्रन आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने कंटिन्यूअस सीरीज में एक्चुअल मीन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड को यूज करके स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को का कैलकुलेशन करना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 2 मेथड जो है कि स्टेप डेविएशन और अज्यूम्ड मीन मेथड को यूज करके इसी टेबल में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आई होप चिल्ड्रन कि आपको हमारे वीडियो से स्टैटिस्टिक्स समझ में आ रही है और अगर आपको अच्छे समझ में आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।